Hello everyone, welcome to iExamB which prepare 50% faster. I Akansha Agarwal, your reasoning mentor, is going to provide you a session again on our RBI reasoning section of puzzle. So I hope you could be the next one in our countdown of RBI, NABARD, SEBI or any of your competitive examination. So download iExamB app for 50% faster job preparation. Right. So I, Akansha Agarwal, experience of 11 years with many competitive examination is here with you and making the most difficult part in the most easiest way. So today's my motivation is just push yourself because no one else is going to do it for you. So for the competitive examination, all of you required one thing, that is determination, focus, and above all self motivation. So a student who is managing best, right, the time management. So if you are well managing your time, your selection would be much closer to you. So I hope everyone is making strategies and organizing your schedule accordingly with your examination. So let's get started with a part of puzzle. See, solving a puzzle has a methodology, and this is only the 4 points I need to discuss with you, which you can apply in any of your puzzle. Read each and every statement carefully. Try to make graph out of each statement. Connect all the common points. And once you are able to do that, and if you're stuck, so always remember the solution always lies within the puzzle. So there means we just need practice in solve. So puzzle solving a puzzle is sort of an art. So if you follow the strategies and practice it well, it would be going to be easy for you. So today I have taken a puzzle where you will see this sort of puzzle often in your competitive examination. So this is a puzzle about 7 person who made presentation on 3 different topics, okay, such that not less than 2 person having the same presentation topic. So here the part is 7 person with 3 presentation. Okay. Next, each person also like different sports. That means 7 sports are there. And each person held presentation held during the day. That means there is also an element time. So there are 4 elements in this whole puzzle. So once you're reading these 4 lines, you get an idea how many elements in there, and you got an imagination of how you're going to resolve this puzzle. तो आपको किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ये पहले ही 4 lines आप पढ़ के इसको आराम से एक इमेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं. So let's solve this puzzle. So सी मैंने यहाँ नाम भी नहीं पढ़े, ना प्रेजेंटेशन का नाम पढ़ा, ना क्रिकेट, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है. तो जैसे जैसे हम इस पे वर्क करते जाएंगे वैसे आप इस पे को करते जाएंगे, तो हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसका क्या नाम है या प्रेजेंटेशन क्या है. सो ग्लोबल, पॉपुलेशन एंड इन्फ्लेशन आर द 3 कैटेगरी ऑफ पर्सन. अब आप कहेंगे मैम आपने इसको पर्सन वाइज क्यों नहीं करा. देखिए, जब भी इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन की पजल होती है, इसमें जो मिनिमम डेटा होता है हम उसे हमेशा उसे लेके कंसीडर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें लिखा है लेस देन 2 person हैव द प्रेजेंटेशन ऑफ सेम टॉपिक. सो हर एक प्रेजेंटेशन में दो दो लोग होंगे. 7 person की जगह यहाँ पे 2 और 2, तो ऑब्वियस सी बात है 3 पजल में 6 लोग तो होंगे और एक में 7 person होंगे, यानी 2 यहाँ हो सकते हैं, 2 यहाँ पे या 3 यहाँ पे. तो मिनिमम डेटा को आप कॉलम वाइज आप लेके करेंगे तो आप देखेंगे कितना स्मूथली हम काम कर लेंगे इस क्वेश्चन पे. सो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना डेटा रीड करना. यू प्रेजेंटेशन वॉज एट 12 p.m. Y presentation at 9 a.m. T likes hockey and have a presentation of global warming with only 1 person likes rugby. ये ओनली वर्ड ना रीजनिंग में बड़ा ट्विस्ट वर्ड है. जहाँ पे भी आपका ओनली वर्ड आ जाए आप समझ लीजिए आपको संभल के चलना है. सो यहाँ पे क्लियर दे रखा है कि टी को हॉकी पसंद है, उसकी प्रेजेंटेशन ग्लोबल वार्मिंग पे है. तो यहाँ पे टी के साथ हॉकी अटैच हो गया. पर्सन को हमेशा हम एक सर्कल में लेके चलेंगे. विद ओनली 1 person, एक और पर्सन आएगा जिसको रबी पसंद. सो यहाँ से क्लियर हो गया कि अब ग्लोबल वार्मिंग में और कोई पर्सन नहीं आ सकता, 2 ही आएंगे या 3 नहीं हो सकते. Z हैज प्रेजेंटेशन विद 2 other person. अब Z की अगर 2 other person में तो ग्लोबल वार्मिंग में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि टे की केवल एक ही के साथ है प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट देखते हैं.
There is only 1 hour gap between the time of the person who had a presentation in population and with the one who plays rugby. So यहाँ पे अगर हम देखें तो रग्बी और पॉपुलेशन के बीच में जिसने प्रेजेंटेशन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन में दी है उसमें 1 hour का गैप है. ओके, तो इसको क्योंकि कोई भी डेटा कनेक्ट नहीं हो रहा तो हम इसको साइड में लेंगे. आप देखिए हर एक लाइन का हम कैसे ग्राफ बनाते जा रहे हैं ताकि हम कोई भी लाइन लीव ना करें और दोबारा पढ़ने में उसका टाइम वेस्ट ना करें. बोथ पर्सन हु हैड अ प्रेजेंटेशन विद जेड लाइक्स फुटबॉल और बेसबॉल. तो यहाँ पे फुटबॉल या बेसबॉल में हमारे दोनों पर्सन या तो फुटबॉल या बेसबॉल खेलते हैं. W has a presentation on increasing population with only one person doesn't like cricket. So W की presentation हमारी increasing population में है with only one person and अब N यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन कौन है? W. तो W को क्या पसंद नहीं है? क्रिकेट पसंद नहीं है. तो कोई भी फिक्स डेटा होता है ना, चाहे हाँ में हो चाहे ना में, वो आप अपनी टेबल में ही करते जाइए और जो नहीं है वो आप नीचे लिखते जाइए. Next, the one whose favorite sports is badminton had a presentation at 10 a.m. Z presentation was at 10 a.m. अब that doesn't mean कि Z बैडमिंटन है. अभी हम इसको डेटा को छोड़ देते हैं, बाद में कुछ कनेक्शन होगा तो ले लेंगे. The person whose favorite sports are badminton and bowling have same time. So यहाँ पे द पर्सन जिसके स्पोर्ट्स बैडमिंटन और बॉलिंग है, तो बॉलिंग का भी हम ले लेते हैं कि बॉलिंग का भी 10 ही हो जाएगा क्योंकि बैडमिंटन का भी 10 है. नेक्स्ट दे रखा है X had an presentation with only one person. अब देखिए X की प्रेजेंटेशन केवल एक के साथ है तो या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा. अच्छा Z दो लोग के साथ है तो यहाँ से भी ये भी क्लियर हो गया कि Z हमारा यहीं आएगा और यहाँ पे या तो फुटबॉल या बेसबॉल, या तो यहाँ पे फुटबॉल या बेसबॉल. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं और Z की टाइमिंग हम नोट कर सकते हैं. Z 10 AM पे ही है और एक अभी स्पोर्ट्स यहाँ पे हमारा मिसिंग है. नेक्स्ट है द वन हु लाइक्स bowling neither have a presentation on global warming nor. अब जिससे bowling पसंद है ना ही वो ग्लोबल वार्मिंग में आ सकता है ना ही पॉपुलेशन में, तो किस में बचा? इन्फ्लेशन में. तो हमारे पास यहाँ पे आके द वन हु लाइक्स bowling, सो bowling के लिए एक ही जगह बची तो Z हमारा bowling में आ गया और 10. तो यहाँ से ये पार्ट कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट देखिए X को रब्बी पसंद नहीं है, तो जब X को रब्बी पसंद नहीं, X1 नहीं आ सकता तो X हमारे यहाँ फिक्स्ड हो गया. नेक्स्ट देखिए V doesn't like baseball, फुटबॉल और क्रिकेट, तो फुटबॉल बेसबॉल में नहीं आ सकता. क्रिकेट, अच्छा अब क्रिकेट अगर हम बात करें तो क्रिकेट, हॉकी, रग्बी सब यहाँ पे सारे स्पोर्ट्स होते हैं. क्रिकेट डब्ल्यू नहीं हो सकता तो क्रिकेट एक्स ही बचा और एक हमारे पास स्पोर्ट्स और बचा. तो सारे स्पोर्ट्स हमारे फुलफिल हो गए. हमारा एक स्पोर्ट्स बचा बैडमिंटन. तो सारे स्पोर्ट्स कैटेगरी में फुल ऑन हो गए. अब हम वी की बात करते हैं. तो पर्सन की हम बात करें तो वी को ना बेसबॉल पसंद है ना फुटबॉल ना क्रिकेट, तो वी के लिए भी एक ही जगह बची और रग्बी में आ गया. नेक्स्ट आप देखिए द टी एंड द वन हु स्पोर्ट्स इज क्रिकेट. टी और जिसको स्पोर्ट्स को क्रिकेट पसंद है उसकी प्रेजेंटेशन 1 PM पे है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 दोनों में आ गया. V has a presentation just after W, तो W के just after हमारी V के प्रेजेंटेशन है. यहाँ पे अब आप देखिए बैडमिंटन वाला पर्सन भी 10 पे है और W के जस्ट आफ्टर बाद V की और 1 hour का दोनों में गैप है. सो आप देखिए पॉपुलेशन में W के बाद V है और जस्ट आफ्टर है तो 10 में और यहाँ पे 11 आ जाएगा. और यहाँ आप देखिए बचा हमारे पास U एंड Y और U और Y के टाइमिंग फिक्स हैं तो आप यहाँ साइड में भी लिख सकते हैं इस तरीके से भी. तो ये पूरा पजल हमने सॉल्व कर लिया बहुत स्मूथली, बहुत क्लियरली, विदाउट एनी कटिंग, विदाउट एनी मिस्टेक. एंड दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन में मिनिमम डेटा दे रखा होता है. आई होप आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा और आप इस मेथड को यूज करके अपनी इस कैटेगरी की पजल को इजिली कर सकते हैं. So stay tuned with me with more videos of mine on puzzle and the whole reasoning section. तो day by day हम videos में न्यू categories of questions लाएंगे जो आपके लिए बहुत helpful होंगे. इसके साथ आप अपने current affairs की भी तैयारी करते जाइए जो weekly और daily बेसिस पे आपको आई एग्जाम भी प्रिपरेशन में मिलेगी, क्योंकि जनरल अवेयरनेस एक दिन में नहीं डेली करने से ही आती है. ओके, सो डू डाउनलोड आवर ऐप and subscribe our channel. So I hope you all
are doing well with their preparation, and stay tuned with iExamB and watch my more videos on making more marks in reasoning. Thank you. Take care. Bye bye.